میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں حاجی اکبر خان صاحب. حاجی اکبر خان صاحب کا سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ حاجی اکبر ویٹ لفٹنگ کلب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پیٹرن ان چیف ہیں اس کے. جبکہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ویٹ لفٹرز بلوچستان سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں دلاور خان صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں اور بہادر خان صاحب. یہ وہ ویٹ لفٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں بڑا نام بنایا اور ڈفرینٹ لیول پہ اپنے ریکارڈز بنائے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، آپ نے یہاں پہ ایک پودا لگایا ہوا ہے جس کا نام ہے حاجی اکبر ویٹ لفٹنگ کلب، اور یہ آپ پیٹرنائز کر رہے ہیں. کم از کم 15-20 بچے ہیں جن کو آپ سارا سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال سے بلوچستان کا واحد کلب ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہا ہے، ادروائز ایک گورنمنٹ لیول پہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے مین چیز تھوڑا سا، ایک تو دلاور خان صاحب اور ان ویٹ لفٹرز کے متعلق تھوڑی سی بتا دیجئے، اور اپنی کچھ یادیں اس کے متعلق بتائیے ویٹ لفٹنگ سے ریلیٹڈ. ویٹ لفٹنگ میں تو پہلے بہادر خان تھے انٹرنیشنل ویٹ لفٹر. اس کے وفات کے بعد پھر دلاور خان تھے، وہ بھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹر. پھر اسماعیل تھے، وہ بھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹر. تین تو اس گھرانے سے نکلے ہوئے ہیں. بلوچستان تو ایک پسماندہ صوبہ ہے، 3 انٹرنیشنل ویٹ لفٹر اسی گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ بولتے ہیں ایک تاریخی ہم لوگوں کا ایک گیم ہے، یہ چلتا رہے. پر ہم لوگوں کو گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہم لوگوں کو دباتے ہیں. جو اچھے لڑکے ہیں ان کو نہیں لے جاتے ہیں، جو دوسرے ہیں ان کو لے جاتے ہیں سفارش سے. تو ہم لوگوں کا بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس طرح گیم سے. ہم لوگ بولتے ہیں جو شوق زیادہ ہوئے بچے اس کام میں آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم لوگوں. حاجی صاحب، یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو سپورٹ جو ہے کہتے ہیں کہ بہت ساری گیمز میں نہیں ہے نا. اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ خود اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سارا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو دیا بھی ہوا ہے جس میں آپ جو ہے نا اپنے بچوں پہ اور جو ان کے ساتھی آتے ہیں ان ساروں پہ یہ سارا سسٹم کر رہے ہیں، جس میں ان کا کھانے پینے کا خیال ہے، ان کی ٹریننگ کا خیال ہے، اور مزید بھی آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے حاجی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی پرانی یاد جس میں آپ کو دلاور خان صاحب کے زمانے کی ہو یا ویٹ لفٹنگ سے ریلیٹڈ جو آپ کی اچھی یادیں ہیں وہ تھوڑا سا بتا تو دیں. بلوچستان میں جو مقابلے ہوتے تھے سارے شہر آتا تھا. اچھا. لوگ پہچانتے تھے. ابھی تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، مقابلے کراتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ تو اور سپورٹ ان سے نہیں مانگتے ہیں، بھائی مقابلے کراؤ. پاکستان لیول میں جو لاہور میں مقابلے ہوتے ہیں ادھر تو نہیں لے جاتے ہیں، تو ادھر تو کرا دو. صحیح ہے. آپ یعنی کہ آپ کے خیال سے اس وقت لڑکوں کو مقابلے کی سخت ضرورت ہے. اس میں شوق بڑھے گا، نئے لڑکے آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلبز جو ہے نا شہر کے اور حصے میں بھی ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، ہر اور جگہ ہونا چاہیے. اچھا حاجی صاحب، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو آپ کے ہی دوست ہوں، جس طرح آپ کا شوق ہے، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ وہ وہاں پہ کلب بنائیں اور اپنے ان بچوں کو ہی آپ جا کے وہاں پہ ٹریننگ پہ لگائیں؟ یہ تو دیکھو اس ٹائم ہوتا ہے جو مقابلے ہوئے لوگ ہمیں دیکھیں، لڑکوں میں بھی شوق پیدا ہوئے، ان کے بڑوں میں بھی پیدا ہوئے، تو اپنے بچوں کو پھر وہ کلب کی طرف بھیجیں گے. بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر مقابلے ہوتے رہیں تو لوگوں میں بھی رجحان ہوگا اور سپانسرز کو بھی سمجھ آئے گی کہ کس چیز پہ پیسے لگانے ہیں، اور دوستوں کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ وہ نئے کلبز بنائیں اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اس میں آنا شروع ہوں. حاجی صاحب، یہ کلب ہے جس میں آپ کے بیٹے ہیں حاجی اقبال صاحب، یہ ماشاءاللہ اس وقت نیشنل لیول پہ ہے. پاکستان میں یہ ٹاپ 2-3 لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے مزید؟ ان کے لیے کوئی کوچ، گورنمنٹ تو اور کچھ نہیں، کوچ تو ان کے لیے مقرر کرے تاکہ ان کی ٹریننگ دے دے، صحیح ٹریننگ ملے ان کو. یہ تو ابھی اپنے مدد آپ کر رہے ہیں بھائی. تو اس میں کیمپس وغیرہ میں جانا چاہیے؟ بالکل، کیمپ پاکستان لیول پر بلوچستان میں لگنے چاہیے کیمپ. اچھا، کیا میسج دیں گے فیڈریشنز، ایسوسیشنز، جس میں شاید آپ تھوڑا سا کچھ ذکر کر رہے تھے کہ پولیٹکس چل رہی ہیں؟ مطلب ہمارا تو یہ کیا ہے کہ یہ اپنے سیاست کو چھوڑ دے،
गेम के सपोर्ट करे सियासत अपनी जगह पर रखे वो अपने टाइम से करें बच्चों को ख़राब नहीं करें सही बिल्कुल हाजी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की मेरा अपनी राय भी दोस्तों के लिए यही थी कि बलूचिस्तान में चंद वेट लिफ्टर्स मौजूद हैं इनको अगर फेडरेशन और एसोसिएशन के लोग सिर्फ अगर सपोर्ट कर दें तो मेरे ख्याल से इसको तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं रहती है मीन इवन गवर्नमेंट की नहीं रहती है अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें मुकाबले होते रहें और बच्चे अगर अपने कॉम्पिटिशन्स में जाते रहें और इनको नेशनल लेवल के कैंप्स मिलते रहें ट्रेनिंग अच्छे कोचेस से मिलती रहे तो इंशाल्लाह ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं बल्कि ये तो छोड़े और नए नए अच्छे अच्छे लड़के आएंगे इनसे बेहतर आएंगे जी इकबाल आप तो एक चढ़ता हुआ सितारा हैं और ख़ास तौर पे नेशनल लेवल पे कई मेडल्स ले चुके भी हैं मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में आप जैसे बंदे को किस हद तक सपोर्ट मिली है और कहाँ कहाँ आपको इस जगह तक पहुँचने में मसाइल हुए हैं शाहिद भाई सबसे पहले आपका हम बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम जो है ना बलूचिस्तान में एक स्पोर्ट्स और वेट लिफ्टिंग मौजूद है तो इससे हमें बहुत खुशी हुई और हमारा हौसला बहुत बुलंद हुआ कि यहाँ पर कोई जो है ना हमसे इस काबिल हमें समझा है कि हम जो है ना एक वेट लिफ्टर हैं एक प्लेयर हैं एक स्पोर्ट्समैन हैं तो बहुत शुक्रिया आपका और जो है ना बात रही उसकी तो यहाँ पर कोई जो है ना वो नहीं है सब अपने मदद आपके तहत सब लगे हुए हैं तो यहाँ पर बस जो सारे गरीब लड़के हैं सबसे पहली बात ये है कि जो है ना यहाँ कोई जो है ना मुलाजमत कर रहा है कोई रक्षा चला रहा है कोई जो है ना पार्किंग है किसी के क्या है तो सारे वहाँ से जो है ना लड़के इस शौक में कि जो है ना उसको जो है ना कोई डिपार्ट से या जो है ना कोई दूसरा सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर जो है ना नेशनल सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे बड़ी यहाँ पर वो थी नेशनल गेम तो उसमें लड़कों के साथ इतने नाजायज़ हुआ था कि जो है ना सबको जो है ना रोका गया कि इसमें इनको जो है ना खेलने नहीं देंगे मुझे इकबाल ये बताएंगे कि ये जो आपकी जो नेशनल चैम्पियनशिप थी कोई यादगार वाक़या ऐसा जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर दिया हो उसमें मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी ये अपनी उसके लिए कि मैंने जो है ना फर्स्ट और सेकंड के जो है ना मुकाबला रहा तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो है ना वहाँ पर बस ये सियासत में लग गए और हमें जो है ना भाग दौड़ में हाई कोर्ट इधर उधर कचहरी लोगों के पीछे कि भाई हम बलूचिस्तान के प्लेयर हम जब नुमाइंदगी नहीं करेंगे तो कौन करेगा बलूचिस्तान की तरफ से तो उसके बाद जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से बस कुछ साथियों ने हिम्मत करके उसने जो है ना 2 प्लेयर हमारे इसमें रह भी गए इसी सियासत की वजह से तो थकावट की वजह से हमें लिफ्ट हमारी मिस हो गई फर्स्ट की पोजीशन की वजह से तो हमारी और है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 140 स्नैच और 187 जर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरा अगला टारगेट 150 और 200 जर के लेकिन असल बात हुई है हम साथियों को ये कहते हैं कि भाई मैं वेट लिफ्टिंग कब का मर चुका है तो हम जो है ना बस उसको जो है ना एक जो है ना सपोर्ट और एक सेहत के हिसाब से कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ना कोई मुकाबला ना किसी से ताउन ना किसी फेडरेशन से कुछ भी नहीं है 8 महीने 10 महीने हो गए कोई भी जो है ना यहाँ पर क्लब में कोई भी ना कोई पूछता है ना वो हम लड़के सेंटर में जाते हैं उनका हौसला अफजाई करते हैं वो आते हैं हमारे साथ वो हमारे हौसला अफजाई करते हैं बस यही लड़के एक दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं कोई जो है ना बाकी बाहर से कोई हमारा जो है ना सपोर्ट इकबाल भाई एक तो ये इस क्लब की सरपरस्ती आप खुद कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल जो आपकी गेम को प्रमोट करने में ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं कुछ लोग जो दोस्त हैं आपके या ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कौन है या ऑफिशियली गवर्नमेंट क्या कर रही है कोई सबसे ज़्यादा में जो सपोर्ट इस वक्त हमें जो मिल रहा है और जिसके हमें उम्मीद है और जो अभी तक करता आ रहा है वो हमारे अरशद भाई हैं जो नेशनल चैम्पियन भी गुजर चुके हैं और आजकल वो जो है ना इस्लामाबाद में बेरिया टाउन में और रिहाइश उसकी उधर ही है लेकिन नेशनल गेम में सबसे बड़ा जो किरदार यहाँ पर उसने अदा किया था यहाँ पर होगा जो हम कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल जो इंटरव्यू में दूसरे सारी कमेटी उसने बिल्कुल हार मान ली थी तो उस वक्त में अरशद भाई ने जो है ना बड़ा जो है ना माशाल्लाह इस्लामाबाद में बीमार भी थे और उसने ये जो है ना इक़दामात उठाकर जो है ना बड़ी जो है ना रात 12 बजे तक ये जो है ना उसके साथ लगे रहे और कल सुबह जो हम लोग गए वहाँ पर हमें जो है ना उन पर जो है ना खेलने की इजाज़त मिली तो पहले दिन तो हमारे 2 लड़कों को उनको इजाज़त नहीं मिली तो अरशद भाई अभी तक हमें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं
اور ہمیں 150 کلو ویٹ بھی اس نے پچھلے سال لے کر دیا تھا. تو ارشد بھائی ہمیں جو ہے نا اور بھی کافی اس نے وعدے کیے ہیں کہ انشاءاللہ لڑکوں کے ساتھ جو غریب طبقے کے جو لڑکے ہیں جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا ایک ایسا وہ شروع کریں گے جو مہینے کے اس کے جو کہتے ہیں سیلری سمجھے یا اس کا خرچہ سمجھے. تو اس نے کہا کہ ابھی اس کو پاس ٹائم نہیں لیکن اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں یہ سسٹم اس جو لڑکے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے ترتیب میں نے بنانی ہے. تو ارشد بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ارشد بھائی میرا نام عبد المالک، میں نیشنل ویٹ لفٹر رہ چکا ہوں. اسلامک گیم کے 2 بار میں نے کیمپ اٹینڈ کی ہے اور میں یہاں پہ ہیڈ کوچ ہوں پاکستان بیڈمنٹن کمیٹی کا. جی سر. قادر بخش بنگوزی، میں ضلع مستنگ ایسوسیشن کے جو ہے نا صدر اور بلوچستان ایسوسیشن کے جو ہے نا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں اور میرا تعلق مستنگ سے ہے. اور میں وہاں سے یہاں اپنے جو ہے نا گیم کی شوق کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ہمیں جو ہے نا کلب ہے نہ کوئی ویٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا اپنے کھلاڑیوں کو بھی یہاں لاتے ہیں. اکبر خان ویٹ لفٹنگ. میرا نام وقار بخش ہے اور نیشنل پلیئر رہ چکا ہوں. ابھی حال ہی میں بھی نیشنل سلور میڈلسٹ میں نے اچیو کر لیا ہے. تو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. یہاں پہ حاجی اکبر خان کلب میں کھیلتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. میں محمد اقبال 109 کلاس میں بلوچستان سے جو ہے نا میرا تعلق ہے. تو میں جو ہے نا یہاں پر گیم کرتا ہوں حاجی اکبر خان ویٹ لفٹنگ کلب، اس کے جو ہے نا میرے والد کے نام سے. السلام علیکم. میں حیدر علی بات کر رہا ہوں بلوچستان ویٹ لفٹنگ کلب سے. جی بھائی. محمد یاسر بنگلزی، ڈسٹرکٹ مستنگ سے تعلق ہے اور یہاں پہ حاجی اکبر خان ویٹ لفٹنگ کلب میں جو ٹریننگ کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام آدم خان ہے. میں ایک ویٹ لفٹر ہوں اور 89 کلاس میں ہوں اور میں انٹر پروویژنل میں جو ہے سیکنڈ رہ چکا ہوں. السلام علیکم. میرا نام محمد یحییٰ ہے. میں اکبر خان ویٹ لفٹنگ کلب سے. میرا نام محمد آصف ہے. میں ویٹ لفٹر ہوں 67 باڈی ویٹ میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام حاجی عبداللہ ہے. میں ڈسٹرکٹ مستنگ سے تعلق رکھتا ہوں. میں 70 kg باڈی ویٹ میں رہتا ہوں ہمیشہ. السلام علیکم. میرا نام نور احمد ہے. میں 73 کلاس میں. السلام علیکم. میرا نام ناصر پرویز ہے. میں حاجی خان اکبر کلب کا ممبر اس ٹائم اور نیشنل میڈلسٹ بھی ہوں میں. قادر بخش صاحب یہ بتائیے کہ مستونگ میں جو آپ کیونکہ پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، تو وہاں پہ کیا سہولت موجود ہے اور کتنے کلبز ہیں اور پھر وہاں کے مسائل کیا ہیں؟ سر وہاں پہ کوئی اس ٹائم جو ہے نا کوئی کلب وغیرہ نہیں ہے. ایک کلب ہے جس میں کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، جس کے لیے میں نے جو ہے نا بلوچستان ایسوسیشن سے بھی رابطہ کیا ہے اور پاکستان فیڈریشن میں بھی میں نے وہ کیا ہے. اس کے لیے میں نے لیٹر بھی بھیجے ہیں اور جنرل سیکرٹری اپنا سیکرٹری اسپورٹس کو بھی میں نے جو ہے نا اس کے لیٹر بھیجے ہیں کہ ہمیں ویٹ جو ہے نا پرووائڈ کرے. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ویٹ بھی نہیں دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو پرانا جو ایسوسیشن تھا ہمارے، اس کو بھی میں نے جاوید اقبال صاحب کو جو جنرل سیکرٹری تھے، اس کو بھی میں ویٹ کے حوالے سے جو ہے نا اس کو لیٹر بھی لکھ کے دیا کہ بھائی ہمیں ویٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو ہے نا پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. لہٰذا میں جو ہے نا اپنے لڑکوں کو مستنگ سے یہاں اکبر خان ویٹ لفٹنگ کلب جو کوئٹہ میں ہیں مشرقی بائی پاس، یہاں لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ ٹریننگ کراتا ہوں. اور الحمدللہ میرے لڑکے جو ہے نا پاکستان لیول میں بھی جو ہے نا پوزیشن حاصل کیے ہیں، جس میں جو ہے نا انڈر 17 میں میرا اپنا جو ہے نا ایک بیٹا ہے عبدالرازق، وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا نیشنل پلیئر بھی ہے ہمارے محمد یاسر بنگلزی صاحب، وہ بھی جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا نیشنل پلیئر بھی ہیں. الحمدللہ اس نے نیشنل میں بھی کافی جو ہے نا گولڈ جو ہے نا حاصل کیے ہیں، مطلب میڈلس. اور اس کے علاوہ جو ہے نا حاجی عبداللہ ہیں اور محمد نور ہیں اور بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو اس ٹائم جو ہے نا وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، جو یہاں پہ آ رہے ہیں مستنگ سے کوئٹہ آ رہے ہیں ٹریننگ حاصل کریں، کیونکہ وہاں پہ ویٹ نہیں ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. مالک صاحب آپ کیونکہ ہیڈ کوچ بھی ہیں بلوچستان کے، یقیناً کوچنگ وائز جو ہے کافی سارے مسائل رہے ہیں، اور آپ پہلے والی فیڈریشن کو بھی اس کے ساتھ بھی انوالو رہے ہیں، جبکہ ابھی جو انٹرم کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہیں. کیا کبھی بلوچستان کے
कोचिंग कोर्स के लिए कभी उन्होंने आपको इनवाइट किया वहाँ पे लाहौर में या इंटरनेशनली कभी? ये जो नया हमारा इंटर्म कमेटी है, इन्होंने हमें एक दफ़ा इनवाइट किया, यहीं पे कोचिंग ट्रेनिंग हो रही थी। पिछले वाले ने तो बिल्कुल हमें इनवाइट नहीं किए, सिवाय कोयटे का जो नया इंटर्म आया है, इन्होंने हमें इनवाइट किए, इससे पहले हमें किसी ने नहीं इनवाइट किया। और बलूचिस्तान बहुत पसमानदा इस चीज़ में है कि कोई इनको इनवाइट नहीं करते इस चीज़ में। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कंडीशन है बलूचिस्तान में, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो खिलाड़ी सामने आपके आए हैं, क्योंकि एज ए कोच आप उनको बेहतर एनालिसिस कर सकते हो? यहाँ पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है वेट लिफ्टिंग की, सिर्फ ये इनको प्रमोट कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई इनको वसाइल दे दे फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लड़के यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल तो छोड़े इंटरनेशनल लेवल के, हमारे अलमदीन साहब है, हमारे अजी इकबाल साहब है, हमारे उकर बख्श साहब है, मैं खुद रह चुका हूँ। ये यहाँ पे वसाइल बहुत है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। आपके ख्याल से ये कैसे हो सकता है? तो इनको प्रमोट करें, इनको कैंप में बुलाया जाए, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर नेशनल में कोई मेडल ले रहे तो दूसरे वाले कहते ही नहीं इसका फलान लिफ्ट फेल, फलान लिफ्ट फेल, तो इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, बिल्कुल न कैंप में बुलाया जा रहा है न किसी हो, इस वजह से। जी वकार बख्श, आप नो डाउट के यहाँ पे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई बार, और नेशनल टीम को भी आप रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। फिर वही आ जाता है कि बलूचिस्तान जो है ना, वो नो डाउट कि निगलेक्टेड है स्पोर्ट्स में। तो वेट लिफ्टिंग में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं जो पहले वाली फेडरेशन है और अब जो नई इंटरिम कमेटी आई है? अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई वेट लिफ्टिंग में जो डिफरेंट इस वक्त फ़ील कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो बलूचिस्तान के जो खिलाड़ी है, वो उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। वो पिछले फेडरेशन में तो हम लोगों ने 10 साल जैसा भी है भुगता है, उन लोगों ने भी समझ आ गया। अभी जो इंटरिम कमेटी बनी हुई है, इंटरिम कमेटी पिछले साल से तकरीबन अभी आ गई है। तो पिछले जो कंपटीशन होते थे, असल में खिलाड़ी पैदा होता है कंपटीशनों से। जितना फेडरेशन कंपटीशन देगा, जितना उनको प्लेटफॉर्म फराम करेगा, तो उतने बेहतर से बेहतर खिलाड़ी जो है वो पैदा होंगे। अभी हमारा दौर गुजर गया, लेकिन अभी भी खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान में है, और यहाँ पे जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लड़कों को भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अपना खुद ही भी कर रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। कैसे नहीं सुनता है? हाल ही में जो बलूचिस्तान में नेशनल गेम हुआ ना, शायद भाई यहाँ पे खिलाड़ी दरपदर हो गए हैं। मेरी जो दिल की जो आवाज़ निकलती है ना, कसम से मुझे रोना आता है। पाकिस्तान फेडरेशन ने हमें इग्नोर किया, बलूचिस्तान की फेडरेशन ने उन्होंने हैंड्स अप किए, हत्ता कि हम लोगों ने काफ़ी खिलाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद की। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हम लोगों में इतनी क़ुव्वत और सलाहियत थी कि हम लोग नेशनल में 3 से 4 मेडल अचीव कर रहे थे। इन जालिमों ने हमें सियासत में लगा के और हमें जो है प्लेटफार्म पे खड़े होके हमें खिला ही नहीं रहे थे। क्यों? हम कोई दहशतगर्द है? हम तो खिलाड़ी है। खिलाड़ी होता क्या है? खिलाड़ी एक सफ़ीर होता है। मैं अगर तो हाल ही में जिस कंडीशन में हम लोग शायद भाई यहाँ पे नेशनल गेम खेले हैं ना, नेशनल गेम के दौरान हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। हम लोगों को हाल में अंदर घुसने नहीं दिया गया। क्यों? हमारा क्या कसूर है? हम सिर्फ ये कि हम खिलाड़ी और अपने ही खर्चे पे जो है खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या ये हमारा कसूर है? जावेद जो यहाँ पे सदर है वो, और अजीज़ खान जो है सेक्रेटरी थे, इन दोनों हमारे जो हेड है, जैसे भी है अच्छे बुरे, हम लोगों ने उसके सरबराही में जाके अपने सूबे की नुमाइंदगी करना है। क्या इन दोनों का हक नहीं बनता है कि खिलाड़ियों के बारे में आवाज़ उठाए और कहे कि नहीं, जो भी हुआ तो ठीक है, उसे सेट में रखते, अब फ़िलहाल तो हमारे खिलाड़ियों को खेलने दी जाए। लिहाजा हम लोगों को खेलने नहीं दिया गया। हमारा माइंड सेट बिल्कुल खेलने से हट के एहतजाज और इस चीज़ पे हम लोगों का उस चीज़ पे गया, तो फिर हमारे मेडल ज़ाया हो गए। मेरा अपना मेडल ज़ाया हो गया, मेरा कुलीग है अजी इकबाल, उसका मेडल ज़ाया हो गया, हमारे 2 और दोस्त हैं उनके मेडल ज़ाया हो गए, हमारे साथ ये पीछे लड़के बैठे हैं इनके मेडल ज़ाया हो गए। जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। और एक वेट लिफ्टर
काफ़ी मुशक्क़त से पैदा होता है। आप लोगों को पता है एथलीट जितने भी है एथलीट्स है वो अपने अपनी कैटेगरीज में जो भी है वो अपनी मेहनत करता है, लेकिन मैं कहता हूँ वेट लिफ्टिंग वाहिद गेम है जिसमें खून पसीना जद्दोजहद सब लगा के तब एक वेट लिफ्टर पैदा। ये तो वो मसाइल हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने हल करने हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है ये किस हद तक वेट लिफ्टिंग को सपोर्ट कर रही है? शायद भाई ये बहुत ही आपने ऐसा सवाल किया कि मैं आपको इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। शायद भाई हाल ही में बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कुछ वैकेंसी आई हुई थी, यहाँ पे अगर नेशनल प्लेयर को ड्राइविंग का पोस्ट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत क्या उसके साथ ताउन करेगी। मैं खुद ही गया हूँ डीजी साहब के पास, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, मैंने कहा ये मैं नेशनल प्लेयर और ये मेडल्स है मेरे, मैंने कोई झूठा प्रोफार्मा नहीं लेके आया हूँ आपके सामने। सेक्रेटरी साहब के पास गया हूँ, मिनिस्टर साहब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब के पास गया हूँ, तो उन्होंने कहा है सिर्फ यही है तसल्ली के तसल्ली, उसके बाद पोस्टें किसी और के हवाले। तो यहाँ पे एक नेशनल प्लेयर को एक ड्राइविंग पोस्ट नहीं मिल रहा है यार। अच्छा, वेट लिफ्टिंग के कितने क्लब्स हैं? वेट लिफ्टिंग के इस वक्त जो बलूचिस्तान में कोयटा में जो है वो 2 क्लब एक्टिव है। अच्छा, एक आप लोगों का? एक हाजी अकबर खान क्लब एक्टिव है, एक जो है हमारे अयूब स्टेडियम में सेंटर है वो एक्टिव है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जी। और क्या यहाँ पे इंटरनेशनल वेट मौजूद है? नहीं, इंटरनेशनल वेट तो हमारे पास काइंडली नहीं है, हमारे पास तो लोकल वेट है, वो भी हमारे क्लब के हाजी अकबर खान साहब ने वो भी अपने मदद आपके तहत लेकर दिए, ना ही इसमें सेक्रेटरी साहब ने लेकर दिए, ना ही इसमें जो है सदर स्पोर्ट्स बोर्ड में भी नहीं है? नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड में तो हमें वहाँ पे भी वेट नहीं है? इंटरनेशनल वेट है, अच्छा मौजूद है, लेकिन मजाल है कि कोई खेलने दे, क्योंकि वो तो शोपीस है, जब कोई नेशनल गेम होगा तो उसके लिए आएगा और वापस। वकार, मुझे ये बताइए कि ऐसे कोच जो है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी आपसे डिस्कशन हुई है कि आप एक रवायती ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं डेवलप हो रही या क्या चाहेंगे आप एज ए कोच? शायद भाई पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि हम रवायती ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हमारे जो पुरखों की जो पुरानी ट्रेनिंग चलती हुई आ रही है, हम लकीर के फ़कीर है, उसी लकीर के ही बुनियाद पे चल रहे हैं। हाँ, अगर हमें स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत हमारी हेल्प करना चाहता है, बलूचिस्तान हुकूमत स्पेशली, तो हमें इंटरनेशनली तौर पे कोई नेशनल लेवल के कोच को, इंटरनेशनल लेवल के कोच को हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम भी इंटरनेशनली तौर पे खिलाड़ी को और भी तैयार कर सकें, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों में वो अपॉर्चुनिटी है, वो क्वालिटी है कि वो वर्ल्ड लेवल के मेडल लेके आ सके। तो मेरा यही कहना है कि अगर हमें प्रोवाइड करना चाहता है तो हमें कोई इंटरनेशनली कोच भी प्रोवाइड करे, वरना ऐसी तो हमारे जो अपना देसी कोच है वो भी हमारे साथ काफ़ी मेहनत कर रहा है और उनका हम शुक्रगुजार हैं उनका। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ जी भाई, आप वेट लिफ्टिंग के मतलब क्या कहेंगे? वेट लिफ्टिंग के मतलब तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त गेम है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ना इधर स्टेज है कि हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कोई ट्रेनिंग करें। सब कुछ उधर स्टेडियम में इसी पड़ा हुआ है, वेट भी पड़ा हुआ है, स्टेज भी पड़ा हुआ है, ना हम लोगों को दे रहे हैं ना हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। बस हम लोगों का यही तवक्को है इनसे। आप समझते हैं कि अगर आपको वेट मिल जाए तो आप कुछ कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, हम लोगों ने तो किया है कोशिश, 20-25 साल तकरीबन हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है, बलूचिस्तान का चैंपियन रहा। आप बच्चों को ट्रेनिंग देंगे अगर आपको वेट मिल जाए? इंशाल्लाह खुद दे दूंगा। अभी तो भी इंशाल्लाह हम लोग को अपना आप से क्लब खोला हुआ है, ट्रेनिंग कर रहे, इधर पर्स पे कर रहे हैं, वे न स्टेज है न वेट है न कुछ है। कुछ वेट हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी अजीत साहब ने लेकर के दिया हुआ है, उसी के मुताबिक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो स्टेज और जो राट पड़ा है वो स्टेडियम में पड़ा हुआ है, वो ना हम लोगों को दे रहे हैं ना इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, कब्जा किया है इन लोगों ने। जी आदम, आप तो मेरे ख्याल से एक आप ग्रोइंग एक एथलीट हैं और अभी वेट लिफ्टिंग आपने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके आप यकीनन कई चीज़ें आपको किस चीज़ ने यहाँ पे आने के लिए इंस्पायर किया? क्यों आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो? ऐसा है कि सब जो है कोई चीज़ देखकर जो है उसका शौक़ जो है वो होता है।
शौक़ आता है किसी चीज़ पर, तो ज़ाहिर सी बात है जब मुकाबले होते हैं तो मुकाबलों को यही देख कर जो है लड़के आते हैं, नए लड़के आते हैं, तो फिर वही आकर जो है फिर यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करते हैं और कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जदोजहद करने के बाद जो है कुछ न कुछ बन जाते हैं। तो इन्हीं को जो है मुकाबलों को देख कर जो है मैं आया हूँ यहाँ पर और अभी जो है शुरू हूँ इधर ही जो है मेहनत कर रहा हूँ फ़िलहाल। आपके ख्याल से आपके कोच कैसे मेहनत कर रहे हैं आप पे? कोच तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अपनी जो सलाहियत जो क़ुव्वत है उनसे ज़्यादा जो है बल्कि हमारे साथ जो है कर रहे हैं। सुबह शाम जो है हमारे लिए हर वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है ट्रेनिंग होती है, तो हर वक्त जो भी खिलाड़ी हर वक्त जिस टाइम भी आता है उसी टाइम जो है कोच साहब हमारे जो दस्तयाब होते हैं। जी यासिर, आप भी मोस्ट सीनियर प्लेयर्स में आ रहे हो बलूचिस्तान के। आपने कई नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी जगह पे मेडल्स लेके आए बलूचिस्तान के लिए। आप थोड़ा सा बलूचिस्तान वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री के मतलब बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने ग्रो करना शुरू किया 20 साल पहले और आज और 20 साल पहले में क्या फ़र्क है? सर बात दरअसल ये है ना, वेट लिफ्टिंग असल में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट ही वेट लिफ्टिंग बलूचिस्तान से ही हुआ है। 1967 से मतलब जो है वेट लिफ्टिंग हुआ है फर्स्ट टाइम, जिसमें बहादुर खान वेट लिफ्टिंग था और उसके बाद दिलावर ख़ान था। इसी तरह चलता रहा, जो हमारे जो सीनियर थे वो वेट लिफ्टिंग करते रहे। सन 2003 में मैं ख़ुद वेट लिफ्टिंग में जो है फ़र्स्ट टाइम आया था और जिसमें मैं गोल्ड हुआ था, बोर्ड का मुकाबला था। इसके बाद 2009 में फिर दोबारा बोर्ड का कंपटीशन हुआ, उसमें मैं हुआ। 2014 में मेरा मेडल था। इसके बाद 2010 में नेशनल गेम पेशावर मैंने खेला हूँ और 2012 नेशनल गेम। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वेट लिफ्टिंग की, आप बता रहे हैं पहले बड़े स्टार्स थे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो क्या वजह हुई कि डिक्लाइन हुआ और इस वक्त क्या उम्मीद रखते हैं वेट लिफ्टिंग बलूचिस्तान पे आप? उम्मीद तो हम अच्छी रखते हैं, अब भी हमारी उम्मीद थे तो उन्हीं के थे पहाड़ की जैसे। उम्मीद अच्छा रखना चाहिए इंसान को। बाकी ये कुछ हमारे सियासी लोगों के इख्तिलाफात की वजह से वेट लिफ्टिंग को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे फेडरेशन की तरफ से हमारे जो है वेट लिफ्टिंग को बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे नज़रअंदाज किया। अभी रिसेंटली एक इंटर बोर्ड का जो है चैम्पियनशिप हुआ था, जिसमें बलूचिस्तान से कोई भी खिलाड़ी जो है वहाँ पे शिरकत नहीं किया था, जिसमें हमारे पास ख़ास तौर पे जो यंग जो लड़के हैं जो स्कूल लेवल के थे बोर्ड के 5 से 6 लड़के थे और जिनमें 3 हमारे पक्का जो है गोल्ड के चांस थे, जिनको इन लोगों ने ज़ाया किया। तो ये बहुत बड़ा हमारे वेट लिफ्टिंग के लिए मैं कहता हूँ ज़वाल पजीरी का जो है सबब बन सकता है ये चीज़। क्या चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपको जिसने दिल तोड़ा आपका पाकिस्तान लेवल पे? इस वक्त पाकिस्तान लेवल पे जो हम लोगों का दिल तोड़ा, ये जो 2023 का जो नेशनल गेम था, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो बलूचिस्तान के लड़के थे इंतहाई ज़्यादा ख्वार हुए। ये भी मैं कहता हूँ कि हम सारे जितने भी जो लड़कों ने शिरकत किया, मरून मिन्नत है हमारे एक सीनियर प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर मैं कह सकता हूँ, अरशद साहब, जो कि इस वक्त इंटर्म कमेटी का जो है मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का जो है नायब सदर है। तो उसकी कोशिशों की वजह से उस तकरीबन मेरे ख्याल में रात 12 बजे तक स्पोर्ट्स बोर्ड और डायरेक्टर डीजी जो स्पोर्ट्स है उससे जो है उसने राब्ते करते रहे, तब जाके जो है हमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ा गया। जिसमें इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे बलूचिस्तान में वेट का मसला है। जो बलूचिस्तान के क्लबों में वेट नहीं है, स्टेज नहीं है। जिस वक्त मैं इस वक्त जो आज अकबर खान वेट लिफ्टिंग क्लब में हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास स्टेज नहीं है। तो रबड़ के हम लोगों ने कुछ इस तरह का है जो है स्टेज है, उस पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत। इस वक्त जो क्लब चल रहा है सिर्फ आज अकबर खान वेट लिफ्टिंग क्लब है। बाकी अयूब स्टेडियम में जो एक सेंटर है उसमें भी मेरे ख्याल में जो है कभी वेट लिफ्टिंग होता है तो कभी नहीं होता है। कोई ख़ास एसोसिएशन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और फेडरेशन तो वैसे ही हाथ उठाया बलूचिस्तान की तरफ से।